Okay, till the point Tejaswini joins, any shares? How was the meditation and what was the gift? The chat. So I wanted shares spoken. Hmm. So my share was a successful digital farming coach in 2026. Great. What was the gift in the box? This was the gift. Okay, wonderful. Wonderful. Navodita, do you have a share? How did you feel after the meditation and what did you write? It was a lovely feeling, and I could really follow your instructions and reach to the place and everything. When you said there is a sound that I could connect myself to a beautiful Basuri sound, which I thought it was like a Krishna playing that song for me, and I was drawn towards that voice. And then when I reached up that beautiful temple and inside the temple and there was a female standing because I don't think you mentioned male or Yes, of course. female. Hmm. Yeah, so I could see a motherly person there, and then she gifted me, and when I opened that, it was a bright of it, and when I saw it, it was a big diamond. It was so heavy that I could feel the heaviness in my hand, Wow. and and then I could see there's a Krishna Murti also, Gopal Krishna, Chota Sa. So I don't know, it was like lovely to Great. Did you have ask this. anything from her to I her? asked that what does this mean, Okay, but maybe I will get to know that later. great. Yeah. Tejaswini, how was the meditation for you? What did you write? And what did you get in the gift? Unmute करना है. Prompt आया? Yeah, ma'am, can you hear me? Yes. Um, Ma'am, it was a light, and everywhere there was a greenery and sun rays, what I was seeing. And I saw Jesus, and Okay. he just gave me a cute little baby Oh, wow. in my hands. A Great. very fair, cute, chubby baby. Great. Wonderful. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. So now you know the path we need to walk on. And now the first principle to align your life is known as 100% responsibility. When you take 100% responsibility of your life. So from today onwards, what I want you to do is go deep into this concept, go deep into this principle of taking 100% responsibility. So when I say 100% responsibility, what I mean to say is the same thing which I was telling to you a moment ago, that anything outside of you only has a meaning when you give it a meaning inside of you. So a lot of times what happens is we think that Can I write?
Can I Yeah. write the sentence you have just said right now? Yes. You want me to repeat it? Yeah. Anything happening outside of you has a meaning only when you give it a meaning inside of you. So, as they say, your outer world is the reflection of your inner world. In your head, in your heart, if you are desperate about things, वो desperation बाहर सब जगह दिखेगा. In your head, in your heart, if you are cool and calm, वो cool and calm सब जगह दिखेगा. So a lot of times what happens is we think that other people in our life, they should change for our life to change. कभी वो एम्प्लॉयज हैं, कभी वो बॉस है, कभी वो हस्बैंड है, कभी वो इन लॉज हैं, कभी वो फ्रेंड्स हैं, कभी वो कोई है. वी वॉन्ट अदर्स टू चेंज फॉर आवर लाइफ टू चेंज. और जब हम ये करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम वेटिंग में चले जाते हैं. बिकॉज नाउ इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये तो मोनिका बदलेगी तब मैं बदलूंगी ना. तो नाउ आई एम वेटिंग. Waiting for Monica to change, waiting for my employees to change, waiting for my husband to change, waiting for my in-laws to change, and waiting and waiting and waiting. And when you wait, what happens is you start blaming, you start complaining, you start making excuses. कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में, तुम्हारे कारण मेरे बिजनेस में, तुम्हारे कारण इसमें सब कुछ गड़बड़ हो रहा है. You start complaining. You start making excuses. Complaints about मौसम ही खराब है, सरकारी खराब है, पता नहीं कौन कौन खराब है हमारे आसपास. Complain. Excuses. So when you do this, you get stuck into a victimhood. Stuck into a victimhood. और ये जो प्लेस है ना, जब आप victimhood में पहुंच जाते हो, जब आप you start enjoying people giving you sympathy. You start enjoying telling your victim story to everyone, and they are just listening to your story. Maybe they are not sympathizing, but still they are just listening to your story. And now we are like, कुछ हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि लोग खराब हैं, क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई. Just tell me, कितना ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दे कि इस साल बारिश कम होने वाली है, किसान बीज डालता है कि नहीं डालता है? क्या वो ये बोल के बैठ जाता है इस साल तो बारिश ही नहीं होगी, मैं तो बीज ही नहीं डालूंगा, बीज डालूंगा तो खराब ही हो जाएगा, इन्वेस्ट. नो. फार्मर स्टिल पुट्स दैट सीड कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो निकल के आएगा. बिकॉज ही टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे हाथ में जो है मैं वो तो करूं कम से कम. देखो, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि any relationship, when I say, it is about any relationship, whether it is a husband wife, whether it is a brother sister, whether it is an employee boss, whether it is a boss employee, whatever. Every relationship has two aspects. One your half and another one is another person's half. Am I taking 100% responsibility of my 50% is my question. Am I taking 100% responsibility of my 50% is the question. कि बारिश नहीं होगी, वो बारिश होना. सो भगवान भी क्या करता है? भगवान और हम को क्रिएट कर रहे हैं लाइफ. पूरी तरीके से भगवान के हाथ में भी नहीं, पूरी तरीके से हमारे हाथ में भी नहीं है. लेकिन हम बैठ जाए कि भगवान तुम ही कर लो जो करना है. भगवान भी बैठा है कि तुम तो अपना 50% करो पहले, फिर तो बारिश आएगी कि नहीं आएगी, कुछ होगा कि नहीं होगा, वो एक डिफरेंट. सो what I want you to do now is just get out of that victimhood if you are there. अगर लाइफ में ओके, एक एक्सरसाइज लिखो आज, इस हफ्ते पूरा एक एक्सरसाइज करना है. इस हफ्ते नहीं बल्कि
अब हम कब मिलेंगे मोनिका नेक्स्ट? अब हम बहुत दिन बाद मिलने वाले हैं, बिकॉज हम नेक्स्ट वीक मैं और मोना दोनों कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। इफ यू ऑलरेडी नो, अच्छी बात है। इफ यू डोंट नो, नाउ नाउ इज द इंफॉर्मेशन। 10th तो June. 10th जून को हम क्लास करेंगे, No, I think we are returning on the 9th. है ना? हाँ, तो 10th को हम क्लास नहीं करेंगे, हम 17th को क्लास करेंगे, तो इट इज ऑलमोस्ट अ मंथ. सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे फॉर दिस मंथ. वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज, एक कांच का बॉटल ले लो, बॉटल मतलब जार ले लो, कीप इट विथ यू एंड कीप समथिंग, कोई छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, राजमा के दाने, इलायची के दाने, मिश्री के दाने, कोई भी दाने ले लो. एंड एवरी टाइम यू कैच योर सेल्फ कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग और मेकिंग एक्सक्यूजेस, एक दाना उसमें डाल दो बस. कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग या मेकिंग एक्सक्यूजेस, जैसे ही बोला कि अरे मौसम खराब है, और कैच कर लिया अपने आप को. अवेयरनेस इज द की, राइट? कई बार तो ऐसा होगा कि आपने कुछ कर दिया, आपको ध्यान ही नहीं आया कि अरे मुझे पकड़ना था अपने आप को, लेकिन कभी तो याद आएगा दिन में. और रात में अचानक याद आ गया, अरे आज तो इतनी सारी कंप्लेन की है, तो वो जितनी भी याद आ जाए उनके सबके एक एक दाने उसमें डाल दो, ठीक है? नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज एवरी डे फिल दिस जार, और इसकी पिक्चर ले लो, अगले दिन फिर खाली कर दो, एंड देन अगेन फिल दैट जार. तो व्हाट यू विल सी इज, ये जार में धीरे 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 कम हो रहा है. दिस इज द इंटेंशन, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी वैसे वैसे दिस विल चेंज. And once this changes, you will start taking your 100% responsibility. You will become the driver of your car, not the passenger. अभी क्या है, जब हम ये बोल रहे हैं कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हमने उसको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है, जो भी कोई है वो दूसरा, और हम बैठ गए पैसेंजर सीट पे कि ले चलो जहां ले चलना है. नहीं, आई वॉन्ट यू टू ड्राइव योर कार ऑफ लाइफ. So stop waiting, stop wishing, start doing. What can I do? ठीक है, मुझे पता चल गया कि ये गड़बड़ हो रहा है, मुझे पता चल गया कि जो सामने वाला है वो गड़बड़ है. Now what can I do? Instead of focusing on the problem, let's start focusing on what is the solution and what is in my hands. ठीक है? सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जब मेरी पहली बार शादी के बाद में नई नई जॉब लगी, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द फैमिलीज वेयर daughter in law is expected to cook. So I was expected to cook. अब मेरी लग गई जॉब, एंड ऑफ कोर्स मैं अपने घर से, मतलब मायके में जहां से आती हूँ, वहां पे भी मेरी मम्मी, मेरी चाची सारे कुक करते थे. सो जब मेरी जॉब लगी, तो ऑफ कोर्स इट वाज एन 8 hour जॉब. आई यूज्ड टू गो फॉर द जॉब एंड कम बैक इन द इवनिंग. तो दोपहर का खाना मैं नहीं बना पाती थी, एंड फॉर दैट रीजन आई केप्ट अ कुक. और जब वो मैंने कुक रखा, तो एवरी डे आई वॉज इन अ गिल्ट कि क्यों क्यों मुझे कुक रखना पड़ रहा है, क्यों मैं वो काम नहीं कर पा रही जो मुझे करना चाहिए. And then one day, I just sat down and reflected on this. And I got the answer. I got the answer. कि क्या कुक रखना, what is my responsibility basically? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं खाना अच्छा बनाऊं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ वुमन ऑफ द फैमिली. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना अच्छा बनाना है, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि मेरी फैमिली की वेल बीइंग रहे? हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेल बीइंग, राइट? कुकिंग इज पार्ट ऑफ इट. एंड वो जो प्रथा है वो इस तब चली आ रही है जब women were not educated enough,
They don't used to work outside. They were not capable enough to earn money for their families to make it a good family, a well-being of the family. तो वो सिर्फ जो कर सकती थी वो कर रही थी, कि घर में मैं खाना बनाऊंगी, मैं झाड़ू पोछा करूंगी, मैं बच्चे पालूंगी, दिस इज व्हाट आई कैन डू एंड आई एम डूइंग इट, सो आई एम गिविंग माई 100%, राइट? तो तब तो ठीक था कि लोग कहते थे कि कोई हेल्प नहीं होना चाहिए। आज ये कैसे ठीक है? And I made myself understand this. And of course, when I made myself understand this, I could stand up with a lot of courage in front of my in-laws and told them. क्योंकि every day when I used to come back ना कुछ वो होता था, कंप्लेन होती थी कि अरे आज खाने में ये गड़बड़ था, आज ऐसा नहीं था, आज ये वो, आज चित्रा ने ये जला दिया, आज चित्रा ने वो अच्छा नहीं बनाया, आज रोटी गोल नहीं बनी, आज कुछ ना कुछ हो जाता था। एंड आई जस्ट स्टूड अप वन डे एंड सेड कि ठीक है, अब कुछ दिन खा के देख लेते हैं एंड जस्ट लेट्स ट्राई। अगर नहीं जमेगा तो 2 महीने बाद चेंज कर लेंगे। एंड थिंग्स चेंज्ड। दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई टुक करेज ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ एंड थिंग्स चेंज। हमें पता लगता क्या है, ऐसा कहते हैं कि वॉट एवर यू डू इन रियल लाइफ यू हैव एक्चुअली लिव्ड इट इन योर हेड। तो मैंने अपने हेड में ऑलरेडी जी लिया था उस बात को कि मैं अगर ऐसा कुछ बोलूंगी तो मेरे इन लॉज लड़ाई करेंगे, ये ड्रामा क्रिएट करेंगे और फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, और इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा था। आई नेवर हैड दैट करेज, क्योंकि वो ड्रामा ऑलरेडी हो चुका था सिर में अंदर। बट कैन यू बिलीव इट, कुछ ड्रामा नहीं हुआ जब मैंने आराम से बैठ के उन्हें समझाया कि देखो मैं इतना पैसा कमा रही हूँ एंड दिस इज अ गुड मनी। उसमें से सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए खर्च हो रहा है Mate. on the maids and the house help. We can do much bigger things with this money instead of just staying where we are. And let's understand and let's tackle this as a family. 2-4 महीने करके देखते हैं, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देंगे। और कोई तलवारें नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। They realized just because I asked, number one, I asked with not a preconceived notion of they will deny, and I asked with not a preconceived notion of कि ये तो मेरा हक है, मुझे ये मिलना ही चाहिए। I convinced them. I tried convincing them instead of तलवार लेके खड़ा हो जाना कि आज तो गला काट देंगे किसी का अगर किसी ने परमिशन नहीं दिया तो। नो। So when you change a little bit of perspective, जो मैंने पिछली बार किया था, so of course coming back to event plus E plus R is equals to O. Event हुआ, इन लॉज ने बोला कि आज फिर से ये गड़बड़ हो गई। रिस्पॉन्स हुआ, अरे चिड़ 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 के आपके तो रोज का ही ये दिक्कत है, आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और आउटकम क्या हुआ, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कुक हटा दो। ये इवेंट है, राइट? इवेंट और आउटकम ये। अब अगर मुझे आउटकम बदलना है और मैं ये चाहती हूं कि मेरे इन लॉज कहें कि कुक रख लो, लेट्स ट्राई, तो मेरे हाथ में क्या है, मेरा रिस्पॉन्स। और मैंने वही रिस्पॉन्स अपना चेंज किया विद अ न्यू पर्सपेक्टिव कि लेट्स सी व्हाट कैन वर्क। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पहली बार में ही सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था मैंने, नो। आई ट्राइड अ फ्यू वेरिएशंस ऑफ इट, देन समथिंग वर्कड, देन समथिंग वर्कड एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। एंड फिर तो उसके बाद में देयर वाज अ डे जब वही फादर इन लॉ जो खाना खाते नहीं थे, कुक के हाथ का बहुत परेशान करते थे, वो ये बोलना शुरू कर दिया, चित्रा, चित्रा इज माय हाउस हेल्प। सो उसको बोलना शुरू किया, चित्रा तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, तुम क्यों नहीं टिफिन सेंटर शुरू करती? सो देयर वाज अ डे लाइक दिस एज वेल व्हेन ही वाज गोइंग अवे। ऑफ कोर्स उसके कुछ दिन पहले की बात है। सो यस, वो फ्रॉम एंड completely anti to a house help to becoming somebody who is now thinking that she's a part of the family and everything like that. Things change when you start changing. I have a lady in my community right now. She was in a very toxic relationship, and for years she was thinking about taking a divorce,
बट हर बार वो ये सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतने प्यार से शादी करके भेजा है, उन्हें कितना दुख होगा मैं डिवोर्स लूंगी तो। बट वन डे जब बहुत ही सब चीजें गड़बड़ हो गई, शी जस्ट वेंट टू हर पेरेंट्स एंड सेड के मुझसे अब नहीं हो रहा, एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ डिवोर्स। कैन यू बिलीव इट, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हम तो बहुत दिन से जानते थे कि ये काम नहीं कर रहा है, बट बिकॉज यू वर नॉट गिविंग अप, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें तो पहले दिन से ही समझ में आ गया था। सो हमारे इन आवर हेड जो खिचड़ी पकड़ी है, वो कई बार वो सच्ची नहीं है, वो सिर्फ हमारे हेड में है। सो लेट्स ट्राई डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। रिस्पॉन्स का एक वो लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन या फिर मीनिंग, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने लगते हो सिचुएशंस को, देन it is your 100% responsibility. Just become the observer of your reactions. I'll give you another example. मेरी लाइफ का मैंने एग्जाम्पल बता दिया, मैंने एक अपनी ट्राइब मेंबर का एग्जाम्पल भी बताया, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आप। अ फादर गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, लास्ट मोमेंट है, तैयार हो रहे हैं, तैयार होते होते अचानक से नीचे जब पहुंचते हैं, चाय मतलब नीचे पहुंचते हैं इसीलिए क्योंकि मेरा घर 2 फ्लोर है, तो इसीलिए मुझे लगता है सब ऊपर से नीचे जाते हैं तैयार होने के लिए, लेकिन कोई नहीं। सो जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पे बैठता है चाय पीने के लिए, चाइल्ड कम्स एंड हग्स हिम टाइटली, और ये जो टाइट हग कर रहा है, चाय फैल जाती है उसके ऊपर, और ये बहुत गुस्सा हो जाता है कि you always do this, you are never responsible about this and that, and child starts crying. आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप वापस ऊपर जाते हो, वहां पे चेंज करते हो, वापस आते हो, देखते हो कि बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, स्कूल के लिए तैयार नहीं हुआ। अब क्योंकि स्कूल के लिए तैयार नहीं हुआ, अब आपको बस छूट गई, आपको उसको छोड़ने भी जाना है। नाउ दिस फादर टेक्स द चाइल्ड विद हिम, टेक्स हिम टू स्कूल। स्कूल जाके स्कूल में छोड़ता है, बच्चा नाराज है, गुस्से में है, तो बच्चा पलट के देखता भी नहीं है, बाय भी नहीं करता, और बच्चा चला जाता है। एंड ही रीचेज ऑफिस, और जैसी उतरता है अपनी गाड़ी में से, वो देखता है कि अरे वो बैग तो मैं लाया ही नहीं, जिस बैग जो बहुत इंपॉर्टेंट बैग था जिसके लिए आज मीटिंग होने वाली थी। रीचेज ऑफिस, एंटायर डे वॉज डिस्टर्ब्ड डे, और सारा दिन खराब निकलता है। शाम को वापस घर पहुंचता है, बीवी भी मुंह फुला के बैठी हुई है, बच्चा भी मुंह फुला के बैठा हुआ है। वो दिन और उसके बाद शायद 2-4 दिन और खराब गुजरते हैं। इवेंट, चाय फैल गई, रिस्पॉन्स एंड आउटकम, यू जस्ट चेंज दैट रिएक्शन फॉर अ मोमेंट। कह रहे ठीक है, बच्चा है, चाय गिर गई, और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, गिर गई है। उसको अगर आराम से अलग करके बोलता कि बेटा अगली बार केयरफुल रहना, पापा को लेट हो रहा है ना, एवरीथिंग मस्ट हैव चेंज्ड। वो बच्चा रोता नहीं, स्कूल की बस छूटती नहीं, स्कूल वो टाइम से पहुंचता, क्योंकि ही मस्ट हैव बीन इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, वो बैग नहीं भूलता, वो सही समय पे अपने ऑफिस पहुंचता, ऑफिस में सब कुछ अच्छा चलता, और शाम को जब वो घर आता तो बीवी और बच्चे हंसते हुए मिलते। देर आर मोर चांसेस दैट दिस वुड हैव हैपेंड इफ this was the response instead of the reaction. So just be aware about how you respond. Observe your responses. जो भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी आप रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा ऑब्जर्वर बनो। और जैसे ही आप ऑब्जर्वर बन रहे हो ना, जिस मोमेंट आपको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो क्या करना है, वो मिश्री, वो इलायची दाना डाल देना है उस जार में, एंड जस्ट कीप ऑन वॉचिंग कि वो महीने भर में कैसे कम होता है। और जितना पिक्चर लोगे ना उसका, और जब उन पिक्चर्स को इकट्ठा देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस, बिकॉज व्हाट वी वांट इज द प्रोग्रेस। सो just concentrate on the R, your response. Event is a stimuli which is a past.
R is your response, which is in your hands right now, is a present. O is a future. पास्ट और फ्यूचर पे कहीं भी आपका कोई भी होल्ड नहीं है. एंड इफ समथिंग इज देयर जहां आप टाइम दे सकते हो, जिसमें आपका एक एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो लिखो, अपने पास में सेंटेंस लिखो, वेरी पावरफुल सेंटेंस. व्हेन योर इमोशंस आर हाई, योर इंटेलिजेंस इज लो. When your emotions are high, your intelligence is low. इसको बिल्कुल ऐसे ही समझो, जब आप बहुत गुस्से में होते हो और किसी से कुछ बोल देते हो, हमेशा आप डू यू ऑलवेज मीन दैट? नहीं. बिकॉज योर इमोशंस आर हाई और इंटेलिजेंस इज, वो बातें बोलते हो जो यू डोंट मीन. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट गुस्सा, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सट्रीम हैप्पीनेस. अगर आप बहुत खुश हो और आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, लाइफ हेल बन गई. गो बैक टू रामायण. वो युद्ध जीत के दशरथ ने कहा 3 वचन मांग लो एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. तो कहते हैं जब आप बहुत खुश हो तो प्रॉमिस मत करो, जब आप बहुत दुखी हो तो कुछ चीज कमिट मत करो. सो व्हेन योर इमोशंस आर हाई, योर इंटेलिजेंस इज लो. सो जब भी आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, टेक सम टाइम. अभी एट द स्टेट जब आपने काम करना शुरू नहीं किया, द इनर वर्क, अभी मैं कहूंगी टेक अ ब्रेक ऑफ 24 hours बिफोर रिस्पॉन्डिंग. थोड़े दिन के बाद में ये टाइम एकदम कम हो जाएगा, कुछ मिनटों में ही आपका रिस्पॉन्स चेंज होने लग जाएगा. इमीडिएटली तो गुस्सा कई बार ही आता है, बट द मोमेंट यू गिव इट अ थॉट, आपका वो गुस्सा कम हो सकता है फॉर श्योर. लेकिन अभी जब शुरुआत है, टेक अ ब्रेक ऑफ 24 hours. जब जब इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन. कितनी बार ऐसा हुआ है, आपने कभी कुछ गुस्से में बोल दिया और उसके बाद में अपोलोजाइज किया, जबकि गलती आपकी थी भी नहीं. गलती तो सामने वाले की थी, आपने सिर्फ एक सेंटेंस गलत तरीके से बोल दिया, इसीलिए आपको अपोलोजाइज करना पड़ा. ओके. 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में जो दूसरी चीज मैं चाहती हूँ जो आप याद रखो, बिकॉज नाउ वी विल नॉट बी इन टच फॉर अराउंड अ मंथ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट और इस चीज को लूंगी, एंड देन मे बी I will have question answers. Quality of life depends on the quality of questions you ask. Quality of life depends on the quality of questions you ask. हमारी लाइफ भी बिल्कुल वैसी है जैसे गूगल होता है ना. गूगल पे आप जो ढूंढते हो वो आपको मिल जाता है, जो ढूंढते हो वो मिल जाता है. इसीलिए कहते हैं इन लाइफ एज वेल, वॉट एवर यू आर सीकिंग दैट यू विल फाइंड दैट. अगर आप खुशी ढूंढ रहे हो तो खुशी मिलेगी, अगर आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो तो एक्सक्यूजेस मिलेंगे. सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस एज वेल. एक बार पता क्या हुआ, मेरी बेटी ने, मेरी 2 बेटियां हैं. सो एल्डर वन सेंट मी अ आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था व्हाई मदर्स आर पार्शियल टुवर्ड्स देयर यंगर वंस. सो या फिर शायद लव यंगर वंस मोर, ऐसा कुछ तो भी था. कुछ नहीं किया मैंने गूगल पे गई और मैंने ढूंढा व्हाई मदर्स आर पार्शियल टुवर्ड्स देयर एल्डर वन, और वहां पे 1000 आर्टिकल्स आ गए. आई जस्ट सेंटर दी लिंक कि ये देखो, ये भी सारे पढ़ लेना. So the quality of questions, quality of your life depends on the quality of questions you ask. You find what you seek. You find what you seek. कितने लोगों ने ताश खेला है?
कार्ड्स देखे हैं, कभी भी नहीं खेले बचपन में, मतलब आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पैसे वाला ताश, लेकिन ऐसी एज अ गेम वो 3-2-5 या कुछ कुछ हम खेलते थे बचपन में, कभी खेला है? कोई और गेम खेला है तेजस्विनी ने? कौन सा गेम खेला है? चेस खेला है? क्रिकेट खेला है? क्या खेला है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। सो पता है मैं क्यों पूछ रही हूँ ये कि कभी गेम खेला है नहीं खेला है? सो अंडरस्टैंड, अब नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम कार्ड्स ओनली, बट आई विल ऑल्सो रिलेटेड विद वॉट एवर तेजस्विनी हैज प्लेड। जब आप ताश खेलते हो, अब आपके पास बहुत बुरे पत्ते आ गए हैं ताश में, तो आप क्या करते हो? आप जब ताश खेलते हो, अब आपके पास बहुत बुरे पत्ते आ गए हैं ताश में, आप क्या करते हो? Strategy. क्या चेंज करते हो? स्ट्रैट Strategy. यस, यू स्ट्रैटेजाइज, राइट? यू डोंट से कि भाई मैं नहीं खेल रही, या तो अब नहीं खेल रहे, हम खेल खत्म। बचपन में तो शायद करते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते वो चीज। सो बचपन में ठीक है कि बचपन में हमें नहीं पता था, स्टिल sometimes we strategized, and sometimes with worst of the cards as well, we won the game, right? So लाइफ में ऐसी हमें कार्ड्स डेल्ट हो गए हैं, हमें मिल गए हैं, वो पति, वो बच्चे, वो इन लॉज, वो माहौल, वो सब कुछ हमें मिल गया है। अब एक ऑप्शन तो ये कि अब मैं रोने लग जाऊं कि वो इतने खराब कार्ड मिले हैं मुझे, मेरी उस फ्रेंड को इतने अच्छे कार्ड मिल गए हैं, मेरी लाइफ में। या फिर अब मैं ये देखूं कि इस कार्ड्स में मैं बेस्ट क्या कर सकती। डू यू हैव एन ऑप्शन ऑफ नॉट प्लेइंग द गेम नाउ? अगर है तो कोई बात नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल रही, देन डिसाइड अबाउट दैट। और अगर नहीं है तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, स्ट्रैटेजी बदलो, चेंज दैट स्ट्रैटेजी, और वही स्ट्रैटेजी इज योर रिस्पॉन्स। सो जो हम कई बार भगवान से पूछते हैं ना, वाई मी गॉड, वाई मी गॉड, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, सब दुनिया में खुश है, मैं क्यों नहीं हूं, सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे भी एक स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि स्टोरी से रिलेट करना और स्टोरी से याद आपको ज्यादा रहेगा, सिर्फ इसलिए। मैं नाम भूल गई, मैं नाम भूल गई प्लेयर का, मुना तुम्हें याद हो तो मुझे बताना। सो ही वॉज अ टेनिस प्लेयर। जब वो विंबलडन जीता, नहीं विंबलडन जीता नहीं वो, सो उसको ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स हो गया। अ टेनिस प्लेयर जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स हो गया, तो एक जर्नलिस्ट उसके पास गया और जस्ट आस्क्ड हिम कि हाउ अनफेयर इज दिस, दैट तुमने तो कोई गलती भी नहीं की बट यू गॉट दिस डिसीज। और आपको कभी कभी लगता होगा कि वाई मी गॉड, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सो ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल कि यू नो व्हाट, पूरी दुनिया में लाखों लोग टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उन लाखों में से कुछ हजार लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले पाते हैं, उन हजारों में से कुछ सौ लोग एक्चुअली किसी प्रॉपर कंपटीशन में पहुंच पाते हैं, उन कुछ सौ में से कुछ गिने चुने लोग फाइनल्स में पहुंचते हैं, सिर्फ दो लोग फाइनल खेलते हैं और सिर्फ एक जीतता है। आर्थर एश, यस, सिर्फ एक जीतता है। तो जब मैं जीत के विंबलडन वो ट्रॉफी मैंने उठाई थी, उस दिन तो मैंने नहीं बोला वाई मी गॉड, देन व्हाई शुड आई आस्क दिस टुडे? Counting your blessings, and of course looking at what can be done now.
हाउ कैन आई मेक श्योर कि जो भी कार्ड्स मुझे डेल्ट हुए हैं, जो भी कार्ड्स मुझे मिले हैं, उनमें मैं बेस्ट खेलूं. ओके. एक और डिमॉन्स्ट्रेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन से ज्यादा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, एंड देन वी विल एंड दिस. तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन का नाम है बिगेस्ट इडियट. बिगेस्ट इडियट. हमें अक्सर क्या लगता है कि वो हमें हर्ट करते हैं. एनीबडी हर्ट्स मी. कि मोना ने ऐसा बोला एंड आई गॉट हर्ट, मोना ने ये बोला इसीलिए आई गॉट हर्ट. लेकिन ऐसा नहीं है. देर इज सम ऑलवेज समथिंग बीनीथ द लेयर्स इनसाइड ऑफ यू, दैट इज वाई यू आर गेटिंग हर्ट. अब मुझे ये बताओ, नवोदिता या फिर मोनिका, मोनिका को मैं बोलूं कि मोनिका तुम्हारे तो ग्रीन कलर के बाल हैं. व्हाट इज दी, नवोदिता को मैं बोलूं, तेजस्विनी को मैं बोलूं कि ओहो हो तुम्हारे ये हरे रंग के बाल कितने बुरे लग रहे हैं यार, क्या रिएक्शन दोगे आप इसका? विल यू गेट हर्ट ऑफ दिस? क्या मन में आएगा? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, और मे बी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. मुझे शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. पागल है क्या? अब हाउ कैन यू सी माय हेयर ग्रीन? इट्स अ नॉर्मल कलर. तेरी आंखें खराब हो गई है क्या? एग्जैक्टली exactly, शायद तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, शायद तुम पागल हो गए हो, शायद रिफ्लेक्शन आ रहा होगा अगर जूम मीटिंग में है तो. बिकॉज आई नो दैट मेरी आंखें खराब नहीं, मतलब मेरे बाल हरे नहीं है. उसी के ऑपोजिट जब कोई हमसे बोलता है यू आर सो क्रूअल, इट हर्ट्स अस. यू आर सो डम, इट हर्ट्स अस. व्हाई? क्योंकि मे बी बीनीथ द लेयर्स वी हैव सम अनअड्रेस्ड वुंड्स, जहां पे बचपन में किसी ने हमसे कह दिया था, एंड इट इज स्टिल सिटिंग देयर. अगर हम श्योर होते तो हमें कभी बुरा नहीं लगता. बिकॉज वी आर अनश्योर, इसीलिए हमें बुरा लग रहा है. तो इट इज नॉट मोनिका, तेजस्विनी, नवोदिता और स्वाति हु इज हर्टिंग यू. Actually, it is your childhood wounds, it is your unaddressed emotions which are hurting you. It is not what they say to you, it's about you, what you say to yourself after they have stopped talking. आप अपने आप से क्या बोल रहे हो जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है? हरे बाल हैं तुम्हारे, उसके बाद में तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या बोल रहा है? हाँ यार, हरे हो गए हैं, कैसे कलर के हो गए हैं, लोगों के तो सफेद होते हैं, मेरे हरे हो रहे हैं. ये बोल रहा है दिमाग. अगर ये बोल रहा है, दिस इज अबाउट यू, दिस इज नॉट अबाउट देम. सो मुझे लगता है आज मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं. आपने मोनिका अक्का का पहले नाम लिया हरे हो गए बाल. मैंने कहा शायद ये कॉम्प्लीमेंट है मोनिका अक्का को, बिकॉज शी इज अ प्राउड फार्मर. I thought you were giving it a Wonderful. compliment. Like, okay, Monica's hair are also green now. Oh my God, that's great. Okay, wonderful, wonderful. So already 5 बजने को है. So if you have any questions, if you have any doubts through the session, if you have any Balmain moments from the session, let's have some shares from all of you. मोनिका से तो बहुत सारी बात होती रहती है, बल्कि तेजस्विनी और नवोदिता से ही मैं सोचूं, मैं सुनना चाहती हूँ some recap of the entire day today. And of course this is the 4th session, so हमारा लगभग 1 महीना खत्म हुआ है. So in 4 sessions का क्या recap है for you? What all things you have already learned and already started practicing? You can unmute yourself and say it out loud. You want to write it down, you can write it down in the chat box, whatever is comfortable to you. Here I want to ask you also something and want to like share something which Question first.
So you said about the response and reaction. Now after learning it for some before also, before I joined you also, so like it is somewhere is building up in me Right. that key, okay, I have to respond correctly. So sometimes it happens that you respond correctly, but the person who was in front was not expecting that response. He Yes. was expecting the old Ha. Navodita, how she would have reacted, and then that makes make that person pissed off. Like, oh my God, how can she? अब क्या Like, करें? हाँ, तो मतलब मेरे को बहुत खुद पे प्राउड भी हुआ और आई देन मुझे people feel bad on that also, like because they were not expecting that. Yes. So I know I was right. I said the thing in a correct way. Uh, but the person still was expecting something else from me. Maybe a response from a old Navodita. So he's not going to be happy with me anyhow. कोई नहीं. That is not your responsibility. Your Hmm. responsibility is to make your soul happy. Right. है ना? एज अ वुमेन हम लोगों के साथ में ये बड़ी परेशानी कि हमें लगता है सबको खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑफ कोर्स सबको खुश रखना शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोल खुश रहे, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी. Hmm. सो आई नो दिस फॉर श्योर नवोदिता के आज शायद हम क्योंकि बदलना नए नए शुरू हुए हैं, सो वी आर गेटिंग ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम पीपल. बट व्हेन वी कीप ऑन डूइंग दिस, एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग अराउंड अस एज वेल. वो ट्रेन हो जाएंगे जैसे जैसे वो अभी तक ट्रेन हुए थे ना पुरानी Hmm. नवोदिता के साथ में, वैसे वो नई नवोदिता के साथ भी ट्रेन हो जाएंगे एंड दे विल Hmm. चेंज फॉर श्योर. ऑफ कोर्स दिस विल नॉट हैपन लाइक दिस. No. This will take a lot of time क्योंकि हमने Hmm. खराब भी तो किया है ना 200 साल में. 40 years, I'm turning 40 now. है ना? सो हमने खराब भी ठीक है 40 में नहीं किया. उस एक किसी भी अगर एक Maybe किसी 5 साल रिलेशनशिप में, की 10 बात साल में करें, तो चेंज होगा. राइट, किसी भी एक रिलेशनशिप की बात करें, अगर अगर वो 10 साल में खराब हुआ है, अब 10 दिन Hmm. में ठीक नहीं होगा. It Hmm. will need at least 10 months, at least a year, at least 2 years. So just be patient and keep doing whatever is right. But I'm happy that at least my response was correct. Yes. And that I will know, fix and damage. I know, and I'm very sure about it, and I'm like I'm very proud of myself for that. All of us are. Yeah. So it was a surprise to me because I got to know that person's reaction. Like, okay, he was not expecting this from me. It was like, okay, it was like cakewalk for me. हाँ. कि उसको पता है कि मैं छुट्टी मांगने जाऊंगा और नवोदिता को यही बोलना है. लेकिन Hmm. नवोदिता ने बोला कि अच्छा ठीक है ले लो. And it is How happening can- at work. Actually, it is happening at work also. People come and like, no, no, आता आम्ही तुमच्या बरोबर काम नाही करू शकत. आता आम्हाला we are getting a better हाँ, opportunity and all. right. I tell them, I'm like, okay, go. ठीक है. हाँ ठीक आहे मग आम्हाला 6 महिने द्या आम्ही दुसरी जॉब मी म्हटलं मग जॉब नाही तर कशाला आला माझ्याकडं. Why you came to me if you didn't had a Yes, job? of course. So they are just testing, right? Hmm. कि शायद इस प्रेशर में आके आप सैलरी बढ़ा दोगे, कभी कुछ कर दोगे. पहले हम Hmm. अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, हम डिफरेंट तरीके से रिएक्ट. नर्वस मतलब मैं नर्वस हो जाती थी कि अभी अगर ये हाँ. इंसान जॉब छोड़ देगा तो फिर यहाँ पे मुझे आदमी नहीं है. Yes. तो So आई यूज्ड टू Navodita, हाँ. understand this. Your inner world, your outer world is the reflection of your inner world. अगर आपका inner world nervous है, तो वो एनर्जी जा रही है सब तक. राइट सारे लोगों के बीच में वो जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं है, जस्ट बिकॉज नवोदिता इज नर्वस अबाउट दैट. राइट बस नवोदिता इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंफर्टेबल कि ठीक है मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा. राइट नाउ दैट at least my psychology is ki okay if you can't work with me then it's better ऑफ for me कोर्स. and for the organization that you don't work. राइट. ग्रेट. गुड शेयर. Thank you. यस तेजस्विनी. तेजस्विनी का नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे.
Of course, तुम लोग Thank के you, सभी ma'am. के नाम बहुत अच्छे हैं क्योंकि तुम लोग के थोड़े मराठी नेम्स हैं, हमारे थोड़े Mm. नॉर्थ इंडियन नेम्स हैं, छोटे छोटे से. Mm. Actually, even I gone through the same issue Mm-hmm. because even I was dealing with the mates, I was not able to handle them. Okay. But now, today you taught us the responding, how to respond. हाँ. But actually, that na we I don't know, but automatically it has come from last week. I Great. don't know how. कर रहे हो ना, Because na, ग्रेटिट्यूड इसीलिए आ रहा है वो. हाँ हाँ पहले बहुत एंग्री फील होता था, देर हाउ कुड दे बिहेव लाइक दैट, हाउ हाँ. आर दे रिएक्टिंग लाइक दैट, एंड व्हाई एम आई नॉट एबल टू हैंडल इट. I was asking questions for myself only, but I don't know how. But I started, huh? I can't force anyone. If they want to leave, let them leave. Let them. And when I started telling that, now they are there. They हम्म, haven't yet left it. वो कहीं नहीं जा रहे अब. हाँ. और पहले जब मैं एंग्री होती थी तो सब छोड़ के जाते थे. Yes. वैसे भी हुआ है. It So today happens. I understood it properly. Great. कि हाँ, this can bring a big change. This does bring a big change. Yeah. अभी तो And it's really, एक साल कर लो और एक साल के बाद में देखा सब कुछ बदल गया है. Everything uh, around you. So, yes. No, I must and say that this. also, yeah, continue. Sorry. नहीं तेजस्वी ना, No, आप पहले कंप्लीट करो फिर मोनिका बोलेगी. और ये भी मैम होता है कि जब हम लोग गुस्सा होके इफ somebody is leaving, and that time we feel sometime, अरे this person shouldn't leave it, he हाँ. should stay here for the job, he should continue. Right. But I had that guilt that I shouldn't have got so angry at that moment, but I couldn't control. And that time even I asked also ki, hey listen, I was angry, but also they don't understand, ma'am, and they go. Then I didn't I didn't ask that guy again. He's leaving now, let him leave. I'll Right. get someone. And really I got someone, some other person on his place. So when I stay calm now, what you were teaching us today, actually it really works. And I don't know how today I saw that baby. I don't know how, because that is my first aim in life. Now, what I want first is baby. And even I'm shocked that how could I see what I want only. I don't know how. Maybe sometime you will also tell us that. Ki, why did I see that only first? Yes. How does it works? And now This I've works started like like, this only, Tejaswini. We had a you know, physical event अभी 17th को. हाँ, You won't believe it. There were 50 ladies in the room. और उन सबके नीचे एक affirmation card रखा हुआ था. When they picked हम्म, up that card, each of them was like, कि आज मुझे यही सुनना था. हाँ, I मैं was भी struggling shocked with too. the same thing today. हम्म, एक आध नहीं, everyone. हम्म. So They were I'm feeling very happy. So they were overwhelmed कि हो कैसे गया. Everyone was there कह रहे मुझे भी शेयर करना है जी, मुझे भी शेयर करना है, मेरे को भी वही कार्ड मिला जो मुझे चाहिए था. So it happens. So ये एनर्जी का काम है पूरा, एंड एनर्जी डज इफेक्ट यू. यस मोनिका, मेरी एक ना 5 बजे की मीटिंग है तो मुझे जल्दी खत्म करना है. सो ऑलरेडी 5:05 हो गया है. ये दोनों अपने से छोटे हैं सोनू. आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट बिलीव इन दिस. राइट योर ग्रैटिट्यूड एवरी डे. डू योर मिरर एक्सरसाइज एवरी डे आई नो. एंड सी द मैजिक अनफोल्ड. मतलब मुझे तो अब लोग पूछते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यू. क्या हुआ है तुम्हें? आर यू मैड? लाइक यू नो. I always ask you what is wrong with you. You're always smiling. There's no change in you. Maybe it's more added. Yes. Yes. So
do your mirror exercise, do your gratitude, Yes. post it on the group, let the world know. राइट, मिरर Okay. एक्सरसाइज करो, ग्रेटिट्यूड करो, ये जार वाला एक्सरसाइज जरूर करना फॉर द कमिंग, अगर महीना भर नहीं करो तो हफ्ते 10 दिन जरूर करके देखना, बड़ा ही अच्छा लगेगा. इट विल चेंज योर एंटायर एनर्जी, एंड व्हेन एनर्जी चेंजेस एवरीथिंग चेंजेस. ठीक है, तो अब आई विल सी Hmm. यू इन जून आफ्टर मे बी 17th बोला ना मैंने, 17th को हम क्लास करेंगे अब, एंड योर 90 days विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. ये बीच का जो ब्रेक है वो हम ब्रेक करेंगे. ठीक है एवरीवन. Yeah. Mona, do we Thank you, have Swati, ma'am. anything to Navodita has missed one class. Can we share the link with her? कौन सा वाला क्लास था? एक्चुअली ना इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो नॉट ऑल द सेशंस आर गेटिंग रिकॉर्डेड समहाउ. लास्ट सेशन आई विल सी, अगर We रिकॉर्डिंग will है check. Yeah. दे विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर श्योर. सभी चीजों की मिलेगी उनको, लेकिन अगर हुई है तो आई डोंट नो. जैसे आज भी मीटिंग बंद हो गई ना बीच में, देयर इज समथिंग, सम Hmm. इशू विद माय जूम ऑन दिस मीटिंग, जस्ट फॉर दिस मीटिंग. अब वो मुझे फिगर आउट करना है, वो फिगर आउट मैं कर लूंगी. अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग है सो ऑफ कोर्स आई विल शेयर. ठीक है, और नहीं तो मैं फिर से करूंगी वो क्लास, डोंट वरी. ठीक है, Thank चलो, you, ओके, बाय ma'am. बाय, लव यू. Bye. Love you. Bye.